So you need to tell me at that time, na? Whenever you want to take note, you can ask me. I'll stop there. Most of the student do. Okay. Okay. So welcome everyone in this session of fluid mechanics. Good afternoon, Pragati. So in the previous session, we have done about the Archimedes principle. So I'll take you through some lab. आप लोग लैब तो जाते ही होंगे. एक डिजिटल लैब है हमारे पास. I'll take you through that lab. Okay. Please let me know if the screen is visible to you. Is it visible? Yes, no, everyone. So this is our lab. Here we will understand what we have done in the previous session, which is Archimedes principle. So we have lots of work here to do. The first thing is we have lots of block. This block is of 4 kg. This block is of 1 kg. 4 kg. Both the block are 4 kg. But the volume of this block, if you will see, and volume of this block has some difference in between them. So this liquid that we have taken here is water. And here we will see in the right bottom corner, there is a density comparison and submerged level. Okay. So as I've told you already, I can use the pen here also. So as I've told you that what is uh, density is what? Density is nothing but mass per unit volume. है ना? And I have told you about the relative density also. Relative density. Now, relative density is nothing but the density of the material divided by density of the water. So according to that, if relative density, which is rho r, is greater than 1, then object will sink. And if relative density rho r is less than 1, then the object will float. Got it? Yeah, this website is very useful, but not all the animations are present here, but still it's very useful. So what I'm doing here, that I'll grab this block and see what will happen. So in this block, according to the weight force, it is applying 39.2 Newton of force on the downside. It's approximately 40 if you take gravity as 10. But here we have taken gravity as what? Here we have taken gravity as 9.8. So let me denote all the value. buoyancy भी मैंने बता दी और ग्रेविटी में. तो अगर आप देखोगे इस ब्लॉक पर buoyancy और ग्रेविटी दोनों इक्वेट हो रही हैं. बट व्हेन आई पुट दिस ब्लॉक in water, you will find out that the force is decreased.
नाउ द नेट फोर्स इट इज एक्सपीरियंसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो ये जो ऑरेंज कलर लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन. ब्लू कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेविटेशनल वेक्टर. मैं इसे ज्यादा नीचे ले आऊंगा तो आप देखो यहाँ पे जितना मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग इज इंक्रीजिंग. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे ही, अब देखो यहाँ भी 19.6 है, यहाँ भी 19.6 है, ईच एंड एवरी स्पॉट पे 19.6 है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? हम्म. देखो, वी नो दैट फोर्स ऑफ बुoyancy, वेरी गुड है. सो बुoyant फोर्स हमने कल पढ़ा था, एफ बुoyant इज नथिंग बट रो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, and gravitational force. This is the formula that we use to calculate the buoyant force. ठीक है. Now focus here. Till when, अगर ये ब्लॉक, let me grab this on upper side, अगर मैं सरफेस पे ले आता हूँ, देखो यहाँ भी 39.2, लेकिन जैसे ही मैं इस वेगिंग मशीन को नीचे लेकर के आया, अब देखो क्या हो रहा है साथ साथ में. इफ यू फोकस ऑन द पिंक कलर वेक्टर, इट इज इंक्रीजिंग व्हेन आई मूविंग डाउनवर्ड. हाउ एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द buoyant force. तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. वॉल्यूम सबमर्ज्ड आप यहाँ भी देख सकते हो, सबमर्ज्ड परसेंटेज इज 87%. तो जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉइंट फोर्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. बट व्हेन दिस इज फुल्ली सबमर्ज्ड, और फुल्ली सबमर्ज्ड को मैं इधर से उधर कहीं भी लेकर के जा रहा हूँ, यू विल फाइंड आउट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इज कांस्टेंट नाउ. व्हाई? व्हाई इट इज कांस्टेंट? बिकॉज नाउ एफ बी is having its maximum value. ठीक है. अब देखो अगर मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ा दूंगा तो पॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा. लेट टेक ऑयल हियर. तो देखो पॉइंट फोर्स बढ़ा, इसलिए ये जो मेरा फोर्स हो गया ये क्या होगा, पॉइंट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, देखो दिस वन. क्लियर है? वाटर लूंगा तो घट रहा है. अगर मैं मर्क्यूरी लूं तो मरकरी में तो बाहर ही फेंक दिया इसे. तो ऐसा क्यों हुआ, मरकरी ने बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी है, मरकरी की जो डेंसिटी है वो इस ब्लॉक की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है. इसलिए ये ब्लॉक का जो रिलेटिव डेंसिटी हुआ विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, बहुत कम हुआ. इसलिए ये रो आर इज लेस देन टू वन कैटेगरी में फॉल हो गया. अब अगर इसकी डेंसिटी ही कम है तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा. ठीक है. और ऐसे ये कर भी रहा है, इट इज फ्लोटिंग. नो मैटर इफ आई इंक्रीज द वेट ऑफ इट, अगर मैं इसका वेट इंक्रीज करूं तब देखो क्या हो रहा है. ठीक है. Every time you will see that this mercury is opposing it to be fall in the liquid. ठीक है. लेकिन मास इंक्रीज करने पे मेरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ जाता है, बाकी फ्लोट ये तब भी नहीं करेगा. ठीक है. इसकी जगह अगर मैं कोई दूसरा ब्लॉक लूं, देखो 1 kg पे कोई दूसरा लिक्विड लूं, देखो वाटर ले लिया, क्योंकि मैं जैसे ही इसका मास, यहाँ पे आप देखो मैं जैसे ही इसका मास बढ़ा रहा हूँ तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ रही है. अब देखो
जैसे ही इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से एक्सीड करेगी, अभी कितनी है, 0.98 है, 0.99। वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, 1। तो अभी 0.01 कम है, तब भी ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका बढ़ा दिया डेंसिटी को, 1 kg किया, अब देखो क्या हो गया। अब मैं इसे कहीं भी प्लेस कर दूंगा, ये वहीं रहेगा। ठीक है, देखो। ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। लेकिन जैसे ही डेंसिटी मैंने बढ़ाई, इफ यू विल सी हियर, 1.01 होते हुए भी ये क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। और जैसे जैसे जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी जल्दी ये जो है फ्लोट कर। ठीक है, देखो, 2 kg का ब्लॉक, बाहर कितने का है, अरे मैं वेट को ही ना डाल दूं, 19.6 न्यूटन है। यहाँ देखो कितना वेट कम हो गया इसका, है ना। इट्स बिकॉज ऑफ द बोएंट फोर्स। बोएंट फोर्स क्या कर देता है, अपने वेट को, अज्यूम्ड वेट जो उसका एक्चुअल वेट है उसे घटा देता है। ठीक है, बट विद इन द वाटर। तो आपको जो वेट महसूस होगा इस ब्लॉक का, अगर आप यहाँ नीचे खड़े हो और यू वांट टू पुश दिस ब्लॉक अप, सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई a 4.04 न्यूटन ऑफ फोर्स, although this block weigh 19.6 newton of weight, but inside the water it's 4.04। अगर मैं हनी ले लेता हूँ, तो हनी में तो ये फ्लोट ही कर गया। क्यों कर गया होगा फ्लोट, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है हनी का, और इस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो क्या है, उसमें डिफरेंस है। हनी की डेंसिटी ज्यादा है देन दिस ब्लॉक का डेंसिटी। ठीक है, जैसे ही मैं देखो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दूंगा, उतना ही ये पार्ट बाहर आ जाएगा। देखो, गॉट इट। और जितनी मैं डेंसिटी कम कर दूंगा कंपैरिजन में, ये देखो, जितना डेंसिटी बढ़ रहा है उतना बुoyant फोर्स बढ़ रहा है। बुoyant फोर्स बढ़ने की वजह से जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट इज W माइनस buoyant फोर्स, एंड buoyant फोर्स इज इंक्रीज। लेट मी टेल यू हियर, buoyant फोर्स क्या है, FB। FB इज नथिंग बट रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो, अगर FB कांस्टेंट है तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जस्ट अ सेकेंड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ रो ऑफ लिक्विड। यानी कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी लिक्विड की, वैसे वैसे वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी देखते हैं करके, अभी देखा भी था वैसे, बट फिर से करता हूँ। जैसे जैसे मैं डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, देखो, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीजिंग। Similarly, you can see the volume submerged, the part of the system which is inside the liquid is decreasing। देखो, पूरा बढ़ा दिया तो सारा बाहर आ गया, हटा दिया तो इतना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो ये बोतल है, ये भी फ्लोट कर रही है, कहीं भी रख दूंगा ना वहीं से फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर। ये नाव है। अब देखो नाव को, अब ये तो सिंक कर गई, लेकिन इस केस में फ्लोट कर रही थी, सिंक क्यों की। अब अगर नाव में मैं ये रख देता हूँ 2 kg का ब्लॉक, और लेट से और भी कुछ है क्या हमारे पास, नहीं। देखो जैसे ही वेट पड़ा तो वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ गया, है ना। अब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम सबमर्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
डेंसिटी घटाई दी तो नाव की डेंसिटी से भी कम हो गया, तो नाव भी सिंक कर। आप देखो, हो गया ना। क्लियर। देखो बोतल में भले ही जो लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो बोतल का कितना पार्ट सबमर्ज है, 7.5%। क्लियर हुआ। मतलब सारा का सारा खेल किसका है, डेंसिटी का है। ऑल द गेम इज फॉर डेंसिटी। जैसे ही मैं डेंसिटी को कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली। क्लियर है। बताओ, कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या फिर इनफ है, समझ में आ रहा है। गेटिंग समथिंग, यस एंड नो। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू यू यार। ओके, so let me reshare my screen with you. Now we will do the portion that we are want to do today. Okay, thank you, Harmit. Only Harmit is responding. Chalo. So today's learning objective is, first of all, this is the mechanical properties of fluid. Learning objective of today's class is continuity and Bernoulli principle. Okay. So what we will be learning today? Streamline and turbulent flow, continuity equation and Bernoulli principle, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल में वेंचुरी मीटर टॉरिसोलीज लो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस फ्लूइड मैकेनिक्स विल बी ओवर। So in the next session we will be dealing surface tension and viscosity. Got it? So first of all we will understand that what is a streamline and what is a turbulent line. ठीक है। Now fluid flow को we can categorize into two part. First is the streamline fluid flow and second is the turbulent। देखो, second is the turbulent fluid flow। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज लाइक फ्लो ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो करता है, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग लेयर बाय लेयर, वन अपॉन अनदर, दैट फ्लो इज टर्म्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन। बट टर्बुलेंट फ्लो इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो। मतलब turbulent flow is also categorized as a disturbed flow and streamline flow is also categorized as a smooth flow। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, वेन एवर द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद वेरी लेस स्पीड, ऑप्टिमल स्पीड से फ्लो कर रहा है, एट दैट टाइम देर आर हाई चांसेस दैट द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। बट इफ अ फ्लूइड is flowing with a very high speed, then the flow that it will achieve is the turbulent flow। ठीक है, क्लियर। अब देखो टर्बुलेंट फ्लो कैसा हुआ है। ये यहाँ से फ्लो आया, बट दिस इज अ वेरी हाई स्पीड फ्लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडीज बन रहे हैं वापस जाने के लिए। So whenever the eddies formation is there, this kind of flow is turbulent fluid flow, disturbed fluid flow। ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो है तो वेलोसिटी ऑप्टिमम है, लेयर बाय लेयर the liquid is or the fluid is flowing, so we can say that the flow is said to be steady। It seems you steady। ठीक है। I think you must have seen that video on YouTube short that a man is taking out some water, so it seems like it's frozen, but when he crosses his hand through that flow, you will find out that this is not frozen. The fluid has achieved that kind of flow that seems very smooth to us, almost static। So streamline flow is a static flow also, or steady flow we can say।
The flow is said to be steady if at any given point the velocity of each passing particle remain constant with respect to time. So this is the property. या वेरी गुड. लेमिनार फ्लो भी हम इसे बोलते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो को लेमिनार फ्लो भी कहीं ना कहीं हम कैटेगराइज कर देते हैं. लेमिनार फ्लो मींस फ्लो ऑफ लेयर्स. नाउ अब देखो ये एक स्ट्रीमलाइन है. लेट से यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वी है. अब यही पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी. सिमिलरली अनदर पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी वी सी and here the velocity is vd. This is vd. But what does this steady flow say? That the velocity of each passing particle remain constant with respect to time. So what does it mean? That each particle passes through point A, point B, point C, point D, and point E. And let's say VA is nothing but 10 meter per second. So whatever the number of particle passes through this point, the speed of each and every particle will be 10 meter per second. Suppose here the speed is 20 meter per second. So whatever the number of particle passes through point B, the speed of these particles should be 20 meter per second if this flow is steady. Okay, clear हुई बात. But you can see that from point to point the velocity is changing. The particle may change its velocity. So that is the meaning of this second law. The velocity of the particle may change as it moves from one point to another, but at a single point, for a given point, the velocity of each individual particle will be same. Clear हुआ? सभी को clear है? चलो. Move to the next part. Streamlines is nothing but the imaginary curve. ठीक है? And why do we draw this? Because laminar flow is that flow which the flow of layers. Okay. So if the flow is happening in layers, we can draw the lines to that. And these lines are termed as the streamlines. Although it's imaginary, you will never find these lines drawn whenever the flow is occurring. But what is the benefit of these lines? That if you draw the tangent to that particular line, suppose a streamline is given to you, and you draw the tangent at each and at a particular point, so you will find that that tangent gives you the direction of fluid particle, in which direction the fluid particle is moving, or at the same time you can say it's like the picture of the particle. Okay, instantaneous picture of fluid particle. Clear? And two streamlines do not cross each other's path. Why it is so? I'll explain you here. So if you draw the tangent to this point, these are the streamline. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Streamline बोलते हैं. Got it? So if you draw the tangent at any point of time, you will find the direction. You will find the velocity of that particular point, the direction of velocity, and direction of velocity is nothing but the direction of movement itself. Now, why do two streamlines cannot cross each other? If they do so, this is a one of the streamline, this is another. So at the point of intersection, you will find there are two possible direction of motion. Either the particle will move in this direction or it will move in this direction. But what you will find out? Which is not possible. Very good, Harmeet. So at the point of intersection, अब वहां पे पार्टिकल बैठ के डिसाइड तो करने से रहा कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, which means this is an impossible phenomenon. Particle can move in one direction only. ठीक है? The direction in which is previously moving. Although it can change the direction, but with the influence of forces. Within the streamline, it is changing the position. It's not possible. ठीक है? Now, I'm already told you, telling you earlier that smoking is very injurious to health. No one would indulge in this activity ever in your life. But to elaborate, turbulent flow.
We can take this example. So when the fluid particle does not flow in the forms of layer, that flow of the liquid or the fluid is termed as the turbulent flow. ठीक है, तो हम वहां पे दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, द फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर, तो लेयर का क्या हो रहा होगा, इंटरमिक्सिंग हो रहा होगा आपस में. ठीक है, एंड दैट फ्लो इज टर्म्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. In this picture, if you will see, there is a cigarette which is lit and the smoke is coming out. From here to here, if you will see, there is a very smooth flow from the basic beginning to the end up to this point only. This flow is very smooth, but after that, intermixing of the layers are happening. This is a very disrupt flow. This flow you cannot say that these are the fluence layers because it is disrupt. So this phenomena from here to here is nothing but the streamline flow. And the upper part, when you will see this is a disturbed kind of flow, is termed as turbulent flow. Clear है? देखो, at high speed which flow will dominate? तो कौन सा फ्लो डोमिनेट करेगा हाई स्पीड पे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. Whenever you achieve the high speed, the chances of intermixing of layer is too much increased. ठीक है, which means at higher speed there is a very strong possibility that the flow will be turbulent, and you can see here also. देखो, ये बहुत ही आराम से बह रहा है लिक्विड, जो भी फ्लूइड है. तो यू विल सी दिस लेयर विल नॉट डिस्टर्बिंग, fluid will not disturbing its nature of flowing in layers. So at low speed there is chances that the flow will be what, streamline flow. Okay, but as soon as you achieve the higher speed, देखो क्या हो, this stream of fluid is coming at very high speed. So what is happening, in spite of flowing in terms of layer, the layers are intermixed with each other and the abrupt flow will take place, which is nothing but the turbulent flow. So at higher speed, the maximum chances there that flow will be turbulent flow. Clear है सभी को? I hope that it is clear to everyone. If you have any kind of doubt, you can ask in the chat box. Now continuity equation and Bernoulli principle. This is the fluid dynamics part. Now let's say everyone has faced this situation, and I think they have enjoyed also in your school, also in your household also. We have a tap when we connected a pipe over it. Okay, whenever we want, so the fluid will come from the open part of the pipe. But most of the time what we will do to increase the flow rate, let's say this is the S1, the range where the fluid will fall. This is S1. But most of the time what we will do to increase the rate of flow or the range, will compress this fluid. ऐसे दबा देते हैं सामने, है ना? तो क्या होता है, उसका फ्लो का स्पीड बढ़ जाता है एंड द रेंज दैट यू विल कवर इज मैक्सिमम देन द प्रीवियस केस. व्हाई इट इज हैपनिंग? एक बहुत बड़ा व्हाई. व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द continuity equation. Now let's just understand. Here we have a changing cross sectional area disk, इसे annular disk भी बोलते हैं. ठीक है, or you can say changing cross sectional area pi. So at this end, if you will find out, the cross sectional area is A1 and on the other end the cross sectional area is A2. Now the fluid enters at the smaller cross section with the velocity v and leaves the cross section with the velocity v2. Now for a small time interval, what is the displacement of fluid at this time? So we can say for a very small time the fluid will be displaced by v1t. अब ये कैसे हुआ होगा देखो. We know that speed is nothing but displacement upon time, or velocity is nothing but displacement upon time. So x को we can write as v into t.
So here the velocity is v1 and we want to calculate the flow amount of fluid that has been displaced from this position to this position in time t. So it will be v1 into t. Similarly on the other side it will be v2 into t. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. This flow will coming out in time t with a speed v2. So what the continuity equation says that here, that the rate at which the mass is enter, ठीक है, the rate at which mass enters the system is equals to the rate at which mass leaves the system. So rate of enter and rate of leaving should be equal. और ऐसा pretty much obvious है ना, जितना फ्लूइड आया अंदर पाइप के उतना फ्लूइड लीव करना चाहिए उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. अदरवाइज क्या होगा, if it is not happening, so you will find what accumulation of mass will be there और पाइप क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा. In the previous case, whenever have you tried, I think most of you have tried it, whenever you compress the pipe to increase the rate of flow, what you will find out, sometime the pipe will, जहां पे लगाया हुआ है ना वहां से निकल जाता है. इट्स बिकॉज क्योंकि जितना मास आ रहा था ना उतना मास अब जा नहीं रहा. देर इज सम एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग. ठीक है, मास तो टैप से उतना ही आ रहा है लगातार, बट वहां पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है. इसलिए या तो पाइप फट जाता है कभी, या फिर उधर से पाइप निकल जाता है. तो दिस हैपेंस टू अस. ठीक है, सो इट्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास है, मास को नेवर, मास यू कैन नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएट. यू कैन नॉट क्रिएट मास एंड अदर डिस्ट्रॉयड इट. सो वट एवर द मास इज एंटरिंग एट वन एंड, द सेम मास शुड लीव ऑन द अदर एंड. ठीक है, so we can say the rate of flow of mass, which is nothing but dm by dt entering equals to dm by dt at leaving. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. So rate of mass entering the surface, can we say that it is rho a1 v1 into t. And how we are seeing it, देखो, we know that, let me explain it here पहले. The liquid that we are taking is incompressible fluid, so continuity equation is also applicable to incompressible fluid. So if the fluid is incompressible, उसकी जो density होगी वो cannot be changed. So rho 1 is equals to rho 2. So rho 1 and rho 2 will cancel out. So we will get A1 equals to A2. Now देखिए ये हुआ किस तरह से. मास रेट को मैं m डॉट से भी लगा सकता हूँ. तो m1 डॉट इज इक्वल्स टू m2 डॉट. m1 डॉट इज द मास एंटरिंग द व्हाट, एंटरिंग द पाइप. ठीक है, अब देखो ये पाइप ऐसे था, ऐसे मेरा पाइप. अब यहाँ पे कितना फ्लूइड आया, इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आया था. इसका ये वाला लेंथ कितना था, v1 वन इंटू टी था. ठीक है, तो कितना वॉल्यूम आया, मास. मास को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मास को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वी, बट दिस इज एम डॉट, सो दिस इज रो वी बाई टी. ठीक है, अब देखो रो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस छोटे से सिलेंडर की बात करो अगर, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था, इस, ये लेंथ कितनी है, वी वन इंटू टी है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ. तो मैं क्या कहूंगा, रो ए वन, क्योंकि यहाँ का जो एरिया था कितना था, ए वन, रो ए वन इंटू वी वन टी. इसमें किसी को प्रॉब्लम है बताओ, एनीवन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस. रो ए वन वी वन इंटू टी, ये वी वन इंटू टी क्या है, लेंथ ही तो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, क्लियर हुआ. सो यही मेरा क्या है, वेरी गुड, यही मेरा क्या है, मास फ्लो रेट है ना. यही तो है मास फ्लो रेट. अब इसे मास फ्लो रेट, ये मास था, रो इंटू वॉल्यूम इज द मास, डिवाइड कर दोगे टाइम से तो क्या आ जाएगा, मास फ्लो रेट. दिस टी एंड टी विल कैंसिल आउट, सो रो ए वन वी वन, वही तो था. अब रो वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू, टी बाई टी विल कैंसिल आउट हियर आल्सो. देखो ये जो v है ना, ये वेलोसिटी है, नॉट द वॉल्यूम. ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लिविंग। अब रो वन और रो टू सेम ही तो फ्लूइड एंटर कर रहा है, सेम ही फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो डेंसिटी विल बी सेम, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, so a1 v1 is equals to a2 v2, this is the continuity equation, this is termed as the continuity equation. Chalo, based on this, try to solve this question. In this question, if you will see, if a liquid enters a pipe of diameter d with a velocity v, what will be its velocity at the exit if the diameter reduces to 0.5 into d? क्या करेंगे? a1 v1 is equals to a2 v2. now pipe क्या होता है? सर्कुलर इन नेचर, तो a1 will pi by 4 d1 square. In terms of diameter, this is the area. v1 pi by 4 d2 square v2. Pi by 4 will cancel out. We know that d1 is given as d square, v1 is given as v, velocity v is given. t2 is 0.5 times of d, 0.5 square into d square, and this is v2. Now what we have to find out? We have to find out the velocity, so d square will cancel out. v2 will become v upon 0.25. You can multiply 100 over here, so v2 is nothing but 4 times of. क्लियर है सभी को? अब देखो, जैसे ही मैंने एरिया को क्या, डायमीटर को क्या क्या छोटा किया, मैंने कंप्रेस कर दिया ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो। ठीक है, सो दैट मोर मास विल कम। मास फ्लो रेट तो इक्वली रखना है, तो वही सेम चीजें इन्होंने भी की है भाई, 4। अब देखो, ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड। सो नंदनी, प्रगति, कोई डाउट है? एवरीवन, दोस्त, 29 स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, एनी काइंड ऑफ डाउट? अब देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम पाइप 3। अब इसे कैसे करेंगे? अरे कोई अनम्यूट करके भी बोल दिया करो यार, आपकी आवाज सुनने को तरस जाता हूँ मैं, कितना बोलता हूँ पर आप नहीं बोल। तो यहाँ पे ये बड़े वाले पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, A1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, A2 इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड V2 भी दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, V3 नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे? रेट ऑफ फ्लो इक्वल होना चाहिए भाई। जो मास यहाँ पे लिक्विड का एंटर किया, इस फ्लूइड का, वो मास इन दोनों के, जो जो यहाँ से आउटर पे गए हैं, दोनों के इक्वल होना चाहिए। मास जो यहाँ पे एंटर कर रहा है, बाद में दो स्ट्रीम में बट गया, तो मास लेट से यहाँ पे m1 एंटर किया, तो वो m1 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा m2 और m3 में। तो वी कैन से दैट m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट प्लस m3 डॉट। वेरी गुड चंदू, चंदू ने कैलकुलेट भी कर दिया। चलो देखते हैं भाई। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, एंटरिंग और लिविंग सेम है। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 प्लस a3 v3, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगी। वैल्यूज पुट कर देंगे, सबके सब वैल्यूज गिवन है, तो v3 इज 2.8। चंदू ने सही जवाब दिया भाई, वेरी गुड चंदू, गुड। अब देखो, इस एमिनेशन को देखो एक बार। तो जो हमारा लिक्विड है, एक पाइप से दूसरे पाइप में फ्लो कर रहा है, बट यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ हाइट। अब ये अपने आप से तो नहीं चढ़ गया होगा, है ना? इसे लिफ्ट कराने के लिए देयर इज सम वर्क, पावर एंड एनर्जी वी हैव अप्लाइड, है ना? सो दैट एनालिसिस वी विल डू इन द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? बर्नौली इक्वेशन। We will analyzing that each and every point of this liquid, what is the energies involved in the flow process. ठीक है, चलो, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इन्होंने दिया था भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक थोड़ा सैल्यूट करो इन्हें, है ना? ग्रेट मैथमेटिशियन थे, स्विस साइंटिस्ट थे, डेनियल बर्नौली।
और ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है, दिस बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो दो ही कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड है सब कुछ। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी इन मतलब इनिशियल, लेट्स से, तो कोई भी सिस्टम है उसके पास जो भी इनिशियल एनर्जी है, अब मैंने उसमें कुछ वर्क डन कर दिया एक्सटर्नल, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में वी कैन ऑल्सो से इट दैट वर्क डन एक्सटर्नल इज नथिंग बट एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ठीक है, वर्क डन जो एक्सटर्नल हुआ, इट्स नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज विच इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? चलो अब डेरिवेशन देखते हैं। ये हमने एक पाइप लिया है, चेंज क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस दिस एंड इज एट हाइट H1, और जो फार्दर एंड है वो H2 हाइट पर है। Pressure at this surface is P1 and pressure at this surface is P2 because we know as we moved in depth, the pressure is increased. ठीक है, so due to the change in height, the pressure will be varying. So that's why we have mentioned P1 and P2. Now, the velocity entering is V1 of the liquid and the liquid exiting with the velocity of V2. ठीक है, अगेन वी विल हैव सम डिस्प्लेसमेंट हियर बिकॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो जितना मास एंटर किया होगा उतना मास क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज d1, दिस डिस्प्लेसमेंट इज d2। आप वी नो दैट बाय एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। नाउ व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? और सबसे पहले चलो वर्क डन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द वर्क डन एक्सटर्नली। ठीक है, although we should talk about energy initial first of all, and if you will see in this way, the fluid is moving, which means it has some kinetic energy because of the motion that this energy would come, and it's also changing its altitude. It's from earth surface, it is at some height, which means it also possesses some potential energy. Okay, now who is the responsible for work done here? The change in pressure is responsible for the work done. So work done by external force on the fluid system is given by what? F1 d1 minus F2 d2। अब ये क्यों दिया है, ऐसा क्यों लिखा? देखो, जो P1 है इधर, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वजह से ही तो प्रेशर आया होगा, एंड दैट F1 is nothing but P1 into A1। Can we write it? Like, yes. And the fluid has displaced with a value of d1. So we know that work done is nothing but by this force is nothing but force into displacement vector. So F1 into d1। अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। बट हियर इफ यू विल सी, जो प्रेशर लगेगा ना वो ऑपोजिट लगेगा इसके, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, कंप्रेशन का काम करता है। तो वन साइड इज पुशिंग दिस लिक्विड, अनदर साइड इज पुशिंग डाउनवर्ड, कि नीचे ही जा, तभी तो मुझे एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है। तभी तो आप लोगों के घरों में या फिर स्कूल में समरसिबल मोटर्स होती है, ताकि वो वाटर को लिफ्ट कर सके। अगर वाटर ऐसे ही चढ़ जाता ऊपर तो फिर हमें क्या जरूरत थी उसकी। हाँ, ऐसे ही नीचे जरूर आ जाए, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो फेनोमेना। ठीक है, दिस फेनोमेना प्रेशर डिफरेंस, बट ऊपर जाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क। अब सिंस दिस प्रेशर इज एक्टिंग अगेंस्ट अस, ऐसे काम कर रहा होगा, तो फोर्स जो इस प्रेशर की वजह से डेवलप हुआ यहाँ पे F2, तो वी कैन राइट F2 एज व्हाट, P2 इंटू A2। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हुआ, बट फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, FD cos 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री। सो दैट इज व्हाई इट इज कमिंग आउट एज माइनस F2 इंटू D2। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू।
So this is we are writing as F1 D1 minus F2 D2. We are putting down the value of pressure here. I have told you how to write F1 as in terms of P1. So it's P1 A1. Very good. So work done external will become here P1 into V1 because A1 D1 is nothing but the volume initial at that part at that D segment length, and A2 D2 is the volume of that particular D segment जो बाहर आया है. ठीक है. बट द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी. इफ अ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल तो हम उसे कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते. इसका मतलब जो उसकी वॉल्यूम है दैट विल रिमेन सेम. सो V1 and V2 will remain same. We can assume it as V can take common, so it will be P1 minus P2 into V. This is the work external. Now the total energy of the system will become what? Energy initial is potential energy at 1 plus kinetic energy at 1. Potential energy is what? Rho gh, rho gv h1. अब देखो rho gv h1 क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है ना. मास कितना, रो इंटू वॉल्यूम. ठीक है, तो इसलिए रो वी जी एच. अब एच क्या है, h1 एट द हाइट 1 एट पॉइंट 1. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को भी 1/2 mv² से रिप्लेस करेंगे. m को किससे रिप्लेस करेंगे, रो इंटू. So rho capital V, which is the volume, into V1 square, which is the velocity of the fluid. ठीक है. Now total final energy, this means potential energy at 2 plus kinetic energy at 2. तो ये भी हम लिख सकते हैं आसानी से, रो जी वी एच टू प्लस 1/2 रो वी वी टू स्क्वायर. अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी विच इज एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, उसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी. दिस इज एनर्जी इनिशियल, दिस इज वर्क डन एंड दिस इज एनर्जी फाइनल. ठीक है, इतनी इनिशियल एनर्जी थी, कुछ वर्क किया तो फाइनल एनर्जी ही हो गई. नाउ यहां से वॉल्यूम को क्या कॉमन आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस फॉर्म यू विल हैव P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 टाइम्स रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नथिंग बट फाइनल potential energy. Now this P2 is nothing but the pressure energy. ठीक है, if you calculate this, so this is the actual form of Bernoulli equation. Clear हुआ, this is the actual form. So sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy is equals to constant, and that is also verifies the conservation principle of energy. ठीक है. So according to Bernoulli's principle, if ideal fluid, the fluid which is having a laminar flow, moves along a streamline, ठीक है, then the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remain constant. Now what is an ideal fluid? Ideal fluid is that which is non-viscous and incompressible. Okay. Now these are the applications of Bernoulli's principle: venturimeter and pitot tube. Pitot tube we use to measure the rate of flow, and venturimeter is also we use to measure for the rate of flow. This is nothing but manometer, which is we use to measure the pressure. This is pressure measuring device. But with the venturimeter, देखो यहाँ पे ये TUR है. Venturimeter we use to measure the flow. Venturimeter के तीन component है. First is this throat. This middle portion is called as throat. This converging side is termed as converging cone, and this diverging part is diverging cone. Always remember that the length of converging zone is less than the length of diverging zone. Diverging zone क्या होगा, बड़ा होगा, converging zone होगा कम. ठीक है, so that ये जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन ही बना रहे. अदरवाइज अगर आपने डाइवर्जिंग जोन भी बहुत छोटा कर दिया तो उससे क्या होगा, एडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे फ्लो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये पिंग पोंग बॉल जो है फनल से बाहर नहीं आती है जब हम इसे
देखते हैं एमिनेशन काम कर रहा है नहीं। चलो छोड़ो इसे। ये क्वेश्चन अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा करके आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हो। हाइट आपको गिवन है, वॉल्यूम और वेलोसिटीज गिवन है, दो डिफरेंट एंड की एरिया भी गिवन है, डिफरेंस ऑफ हाइट भी गिवन है, तो यू कैन इजीली अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल टू दिस। देखो बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे, पॉइंट 1 और 2 पे एनर्जीज लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आप दोनों ही एंड क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो दोनों एंड का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सब वैल्यू आप रखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट V2 इज नथिंग बट 10। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दोगे तो A2 भी आपके पास है। वेंचुरी मीटर के केस में देखो इन्होंने दिया था वेंचुरी मीटर, जियोवानी बटिस्टा वेंचुरी, नाम में कुछ नहीं है, काम में है। सो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच वी यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ पाइप। बर्नौली प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, दो एंड सिलेक्ट करेंगे। ये अपस्ट्रीम फ्लो है, ये यहां से निकला डाउनस्ट्रीम हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग पार्ट का ए है, थ्रोट का स्मॉल ए है, दिस इज मैनोमीटर। ये मैनोमीटर लिक्विड है रो एम डेंसिटी का। प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, एच का आया। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे दोनों पार्ट पे, कन्वर्जिंग पे भी और डाइवर थ्रोट पार्ट पे। तो ए इंटू V1 इज इक्वल टू ए स्मॉल ए इंटू V2। यहाँ से V2 का रिलेशन पता चलेगा V1 के साथ। अब बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल पाइप में बिटवीन पॉइंट 1 और 2। तो 1 और 2 पे हाइट तो सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस किया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एनर्जी का रोल। और प्रेशर हमने मेजर कर लिया था मैनोमीटर से, रो जी एच वी कैन से। अब देखो रो जी एच ही आएगा निकल के, रो एम जी एच। तो ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ρ mgh अपॉन रो इनटू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है टोरिसोलीज लॉ। तो इट इज गिवन बाय अ मैथमेटिशियन एवांगलिस्टा टोरिसोली, नाम ही बहुत हैवी है। तो टोरिसोलीज लॉ क्या कहता है, स्टेट दैट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स इज दैट कमिंग आउट, इफ्लक्स माने विच इज कमिंग आउट। ठीक है, for a non-viscous fluid flowing from a cylindrical tank is V is equals to रूट टू जी एच। देखो कैसे, ये मेरे पास एक टैंक है। ठीक है, इस टैंक पे ऊपर से एच डेप्थ पे मैंने एक होल किया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब यहां से जो वेलोसिटी बाहर आएगी, लिक्विड तो बाहर आना ही, सो व्हाट इज दैट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी वुड बी व्हाट, दैट वेलोसिटी वुड बी रूट टू जी एच। दिस इज द टोरिसोलीज लॉ। अब देखो हमने दो एंड पकड़े, एक तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, दूसरा भी एंड जो है वो यहाँ पे पकड़ लिया विच इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो दोनों जगह का प्रेशर तो क्या होगा, सेम होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, वेलोसिटी V2, सिंस एरिया ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो V1 क्या होगा, इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से टैंक नीचे आ रहा होगा, ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत कम होगी वी कैन से, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो velocity of which is tank is coming out we can neglect। ठीक है, ओके चंदू वेरी गुड। अब देखो, तो V1 को we can assume as 0। नाउ अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट 1 पे लगाएंगे तो P1 प्लस रो जी H1। अब देखो ये जो हाइट होती है ना, ये बिल्कुल बेस से मेजर होती है। ठीक है, बेस से मेजर करनी है, लगा दो। देखो बेस से मेजर की H आया इंटू जीरो, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ दैट टैंक पार्ट इज जीरो, प्लस रो जी एच। अब देखो बेस से मेजर कर रहे हैं उस पे,
तो वहां पे कितना हो गया, जीरो मान लिया उस पॉइंट टू पे। हमने जो रेफरेंस लाइन ली ना, वो रेफरेंस लाइन ही यहीं से ले ली। तो यहां से ये वाला एंड कितने ऊपर है, एच, या हम कितनी डेप्थ में आए, स्मॉल एच। तो इस केस में एच वन की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल एच होगी। बस एच टू इज लाइंग ऑन द लाइन ऑल्सो, एच टू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। लगा दो इसे। आप देखोगे कि वेलोसिटी की वैल्यू इज कमिंग आउट एज रूट टू जी एच। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द फ्लक्स वेलोसिटी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है सभी को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबको समझ में आ गया ना। बट हियर द फैक्ट इज, व्हेन टैंक इज क्लोज्ड, ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं, टैंक इज क्लोज, देन व्हाट विल हैपन। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, दैट विल गिवन बाय टू बाई रो इनटू पी टू माइनस पी एटमॉस्फेरिक। पी टू इज द प्रेशर ऑफ दैट टैंक, ठीक है, प्लस टू जी एच। अब देखो जैसे ही मैं टैंक को ओपन करूंगा तो पी टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये मेरा टैंक है, ये क्लोज है, यहाँ पे मेरा होल है, यहाँ से ये पानी आ रहा है, ठीक है, और वाटर मैं मान लेता हूँ वाटर ही फिल है। तो जो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर किया ना, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, तो इसका प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लोज, इसलिए ये पी टू आ गया। जैसे ही मैं इसे ओपन कर दूंगा तो पी टू भी क्या हो गया, एटमॉस्फेयर पे चला गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एक्टिंग, तो पी टू की वैल्यू भी पी एटमॉस्फेरिक, ये जीरो हो जाएगा, अगेन रूट टू जी एच। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ठीक है, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। क्लियर हुआ। इसे आउटफ्लो की स्पीड भी बोलते हैं, जिस जिस स्पीड से टैंक से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, ना, आई हैव लॉन्च्ड अ पोल, उस पोल में आंसर करो, अपनी अटेंडेंस फिल कराओ। ठीक है, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask, otherwise the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Bye bye, take care. कोई डाउट हो तो जरूर